بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ موٹیویشن از وے آف سکسیس۔ موٹیویشن حوصلہ افزائی، شخصیت کو بھارنا، پھر نکھارنا، آگے بڑھنے کے لیے قابل عمل بنانا، زندگی میں درپیش چیلنجوں سے مقابلے کے لیے تیار کرنا، حوصلہ اور جستجو بڑھانا۔ اس حوالے سے علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اور اسی تواضع سے عام اور سادہ میسج ہے، جو زمانے میں ہمت نہ ہارے، اپنی تقدیر خود جو سنوارے، اس جہاں میں اسی کے ہمیشہ کامیابی قدم چومتی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے مثبت سوچ کا رکھنا لازمی عمل ہے۔ کسی بھی کامیابی کا پہلا قدم نمبر 1 آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دوسرا قدم نمبر 2 آئی ول ڈو اٹ، انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا۔ تیسرا قدم نمبر 3 آئی کین ڈو اینی تھنگ، میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ چوتھا قدم نمبر 4 نو پرابلم، یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ یہ عزم اور کو مضبوط کرتا ہے اور ارادے کو پختگی دیتا ہے۔ نمبر 5 ایوری تھنگ از پاسبل، سب کچھ ممکن ہے، ہر کام ممکن ہے۔ یہ سادہ سی عام بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اپنے عزم اور ارادے کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔ ارادے کی عملی جد و جہد میں کوئی لغزش نہ آنے دیں۔ ارادے اور عمل میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ میدان عمل میں اتریں اور اپنی عملی جد و جہد کے زینے یعنی سیڑھی کے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھیں، تو آپ کی نظریں سیڑھی کی وسط اونچائی پر نہ ہو بلکہ اپنی منزل یعنی اپنے مقصد کی تکمیل پر مرکوز ہو، تو یقیناً اس سفر میں آپ کے پائے ثبات میں لغزش آئے بغیر آپ اپنا کام کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ ہیزیٹیشن یعنی ہچکچاہٹ، اپنا موقف بیان کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کا استاد کتنا ہی سخت ہو، آپ کا افسر کتنا ہی بد دماغ اور بدتمیز ہو، آپ نے اس کی اس خصلت سے مغلوب نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ اس کے منفی طرز عمل کے باوجود مسئلے کے حل کے مثبت پہلوؤں کی جانب سفر کرتے ہوئے کامیابی اور کامیابیوں کی روشن گلیوں کی طرف رخ کرنا ہے۔ اپنے استاد، اپنے افسر کی جاذب نظر شخصیت اور پر اثر گفتگو کے سحر کا اسیر ہونے کے بجائے آپ نے اپنے لیے کامیابی کے موتی چننے ہیں، تاکہ ان کامیابیوں اور کامرانیوں کے موتیوں کی خوبصورت مالا آپ کے گلے کی زینت بن سکے۔ لائف ٹرائنگل، زندگی کی مسلسل۔ انسان ایک وقت میں 3 قسم کی زندگیوں سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ ان تینوں زندگیوں کے درمیان توازن قائم کرنے سے متوازن زندگی کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ اس ٹرائنگل کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آتی ہے آپ کی پرسنل لائف، پھر سوشل لائف، اور ترکون کے کونے پر ایک آتی ہے پروفیشنل لائف۔ یہ 3 زندگیاں ہیں۔ ان تینوں زندگیوں کے درمیان توازن قائم کرنے سے ایک متوازن زندگی کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کی مثلث ان 3 نقاط کے گرد گھومتی ہے۔ زندگی کی اس مثلث کے ان نقاط کے توازن سے متوازن زندگی کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ زندگی میں ہلچل اور مقابلے کے لیے چیزوں کو ٹارگیٹ کرنا اور ان ٹارگیٹ کی تکمیل کے لیے ٹائم مینجمنٹ کا پیراہن دینا بہت ضروری ہے۔ اسمال ٹارگیٹس،
ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपने टारगेट बनाएं और फिर टाइम मैनेजमेंट के तहत उन्हें तकमील के मरहले से गुजारें। आप यकीन करें कि छोटे छोटे टारगेट की मुकर्ररा वक्त में तकमील से आपको एक खुशी नसीब होगी और आपके अज़्म, हौसले, जस्तुजू में इजाफा होगा और नतीजे के तौर पर आपकी आंखों में खुशी की एक चमक पैदा होगी जो आपके लिए कामयाबी का सीना और नए ज़्यादा बड़े टारगेट कबूल करने का अज़्म बेदार करेगी। अपॉर्चुनिटीज़ इन मौक़े। मोटिवेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े की बड़ी अहमियत है। ज़िंदगी में मौक़े सबको मिलते हैं, लेकिन ये मौक़े किसी के इंतज़ार नहीं करते। इसकी एक ज़िंदा मिसाल रेलवे स्टेशन पर खड़े उस फर्द की सी होती है कि ट्रेन आई और रश के बावजूद अपनी हिम्मत, हौसले, जद्दोजहद के साथ लंबी ट्रेन यानी रेलगाड़ी के किसी भी डब्बे में सवार हो गया तो यकीनन मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसके बरक्स जो शख्स अपनी सुस्ती के बायस या रश में अपने लिए जगह ना बना सका उस स्टेशन पर खड़ा रह जाएगा। इस फार्मूले के तहत अपने लिए जगह खुद बनानी पड़ती है, कोई आपको जगह नहीं देगा। डिप्रेसिव कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। अज़्म और इरादा की कमी, बिला वजह का खौफ, वहम, खुद साख्ता पैदा करदा कमज़ोरी, बेजारी, मनफी ख्यालात, किसी मकसद या कामयाबी पर अपनी नज़रें मरकूज़ करने की बजाय अमली जद्दोजहद के ज़ीने यानी सीढ़ी की तवालत, लंबाई, ऊंचाई पर तवज्जो मरकूज़ करने से जिस्मानी, रूहानी अज़्म, इरादा, हौसला, जस्तुजू में कमज़ोरी वाक़ होती है और इंसान आधे रास्ते में ढेर हो जाता है। लिहाजा सारी तवज्जो टारगेट तक पहुंचने पर होनी चाहिए। एक्शन यानी अमल। आप जो काम करना चाहते हैं इसके लिए अपना जहन बनाएं, उसके मनफी और मुज़्ज़त पहलुओं पर मुख्तसर गौर करें और अमली तौर पर काम का आगाज़ कर दें। चाहें तो कॉम्पिटेंट यानी काबिल और मुताल्लिक़ा प्रोफेशनल से मुख्तसर तबादला ख्याल कर लें। मशवरा ना मांगें, न किसी के मशवरों से काम शुरू करें और ना ही अपने काम को तर्क करें। आप यकीन करें कि अपने अज़्म, हौसले और मुस्बत सोच से जिस काम को भी शुरू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने प्रोजेक्ट की तकमील में कामयाबियों से हमदर्द करेगा इंशाअल्लाह। अगर आप नाकाम भी हुए तो आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। अपनी नाकामियों पर किसी मशवरा देने वाले को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, बल्कि अपनी की गई गलतियों को सामने रखते हुए अपने अज़्म, इरादे को बरूकार लाते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ये अमल आपकी सोच को नई जला बख्शेगा। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पीछे मुड़कर देखने से इरादा और अज़्म में कमज़ोरी आती है। घरेलू ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रात को सोने से पहले आने वाले दिन को टारगेट करें और सुबह से शाम तक तमाम उमूर को टाइम मैनेजमेंट के फार्मूले से हम आहंग और हर काम को अपने तकसीम किए गए वक्त के दौरान मुस्तैदी से मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो आप ये देखेंगे कि सारे काम सुखड़पन से मुकम्मल भी हो गए और वक्त भी बच गया। छोटी छोटी नाकामियों के बावजूद अज़्म और हौसला कायम रखें और अपने आप को मायूस और मरूब ना होने दें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नौजवान तालीम याफ्ता बच्चे जब अपनी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं मुलाज़मतों के हुसूल में मुश्किलात पेश आती हैं। सिफारिश, अक़रबा परवरी, तासुब उन्हें एहसास महरूमी में मुब्तला कर देता है। आपने घबराना नहीं है। वक्ती रुकावटों से तायब नहीं होना, अपने अज़्म, हौसले, इरादे को मजबूत रखते हुए अपने आप को मुहासे जंग में उस मुजाहिद की तरह जद्दोजहद करना है जो अपनी बका की जंग आखिर दम तक लड़ता रहता है। अपने आप को हालात के रहम करम पर न छोड़ें। हालात से दिल शिकस्ता
मरूब ना हो, जहन को शऊर को इस्तेमाल करते हुए हालात के तहत सोच को नया रुख देने की कोशिश करें। तन्हाई को करीब ना आने दें, लोगों के दरमियान रहें, बात करें, उनकी मनफी और मुस्बत बातें सुनें, उन बातों की रोशनी में अपने लिए मुस्बत रास्ता निकालें, कम बोलें और ज़्यादा सुनें। मार्केटिंग और सेल्स से वाबस्ता अफराद अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़रूर मिलें, बात करें, तवील तबादला ख्याल करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर अपने लिए वक्त निकालें, कुछ देर तन्हाई में सुकून से बैठकर अपने रोज़ शब का जायज़ा लें और अपनी गलतियों पर नज़र डालें। ये अमल सिमत की दुरुस्ती का ज़रिया बनेगा। अपनी ज़िंदगी को तेज़ बहते पानी की तरह गुजारें, क्योंकि रुके हुए पानी में जमूद तारी हो जाता है और काई लग जाती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से ताफुन फैलता है। हालात तब्दील ना हो तो जगह तब्दील कर दें, इदारा तब्दील कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन बहुत वसी है। आप अगर बचपन से जवानी के गुजरते वक्त को सामने रखें तो आपको एक जैसे ही किरदार मुख्तलिफ शक्लों में आपका पीछा करते नजर आएंगे। आपका शऊर और आगे ही आपको उनके शर से महफूज रखेगा। एक अच्छे अफसर की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने मातहत को एक टीम की तरह साथ देकर चलता है। लेकिन बसा औक़ात ये देखने में आया है कि मुताल्लिक़ा अफसर अपने मातहतों की कमज़ोरियों को नुमाया करके सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हुए ये बावर कराने की कोशिश करता है ये सब निकम्मे हैं। आपने अपनी नज़रों की वो वसी करना है। आपकी शख्सियत आपका अजीम असासा है। आपने अपनी जानिब हर उठने वाले गलत हाथ और मनफी प्रोपेगेंडे का मुस्बत अंदाज में मुकाबला करना है। हिम्मत नहीं हारनी है, मुस्बत अंदाज और मुस्बत तर्ज़ अमल जारी रखना है। नए नए रास्ते तलाश करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन बड़ी वसी है। आप खुलूस दिल नेक नियति से काम करने का अज़्म रखें और अमली इक़दामात के लिए तैयार रहेंगे तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। आपने अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ गुजारना है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह का कौल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ मांगना है तो नसीब व मुक़द्दर मांगो। मैंने बहुत से उलमा को जुहला की नौकरी करते देखा है। जब मैंने हज़रत अली का ये कौल पढ़ा तो बहुत से सवालात मेरे ज़हन में उभरे। फिर जस्तजू हुई। उसके बाद फिर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह का दूसरा कौल भी मेरे सामने आया कि मैंने दूसरी जगह पढ़ा कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह का एक और कौल पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ इंसान की तरतीब में लिख दिया होता तो इंसान को दुआ की हाजत न होती। तकदीर बा तदबीर के अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इरादे की पुख्तगी और अमली जहद ही कामयाबी का रास्ता है। दुनिया के अरबों नफूस की आबादियों में हमारे चश्मे ज़दन में ऐसे अफराद भी आते हैं जो बचपन से लेकर जवानी और पीराना साली तक लोगों के मनफी रवैयों का शिकार रहे। न अच्छे दोस्त मिले, न सलाहियतों को सराहने वाले अफसर और न ही शफ़क़त के मोती बिखेरने वाले उस्ताद नसीब हुए। लेकिन इन अफराद में हिम्मत नहीं आ रही। अपनी जस्तजू और लगन में लगे रहे, आगे बढ़ते रहे कि उनके लिए ज़िंदगी के रेगज़ार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीनन उनके लिए कोई नखस्तान ज़रूर रखा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए मौक़े ज़रूर रखे होते हैं। हमें अपनी जस्तजू से उन मौक़ों को तलाश करने की ज़रूरत होती है। जो लोग अपनी हिम्मत, बलवल अज़्म, हौसला, बर्दाश्त, साबित कदमी से मुश्किलात के इस पुल सिरात को सर कर जाते हैं, कामयाबियों से सरशार होते हैं। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किलात उनका मुक़द्दर बन जाती है। दो रास्ते हैं, कामयाबी और नाकामी। फैसला मैंने और आपने करना है। हम सब के जहन में ये 5 पॉइंट रोशन रहने चाहिए कि यही कामयाबी का रास्ता है कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। नंबर 2, आई विल डू इट, इंशाअल्लाह मैं ये काम कर लूँगा। नंबर 3, आई कैन डू एनीथिंग, मैं हर काम कर सकता हूँ। नंबर 4, नो प्रॉब्लम, ये काम कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 5, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर काम मुमकिन है। और इसी पैगाम के साथ
میرا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، جو زمانے میں ہمت نہ ہارے، اپنی تقدیر خود جو سنوارے، اس جہاں میں اسی کے ہمیشہ کامیابی قدم چومتی ہے۔ آپ کو یقیناً میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج پر اپنے کمنٹس ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔